بہت زمانہ پہلے ایک مقام پر دو چڑیا رہا کرتی تھیں۔ دونوں میاں بیوی سخت محنت کرتے تھے اور بہت خوش تھے۔ ایک دن میاں چڑے نے بیگم چڑیا سے کہا، میں کھچڑی کھانا چاہتا ہوں، کیا تم آج تھوڑی سی کھچڑی پکا سکتی ہو؟ ہاں، چڑیا نے کہا، لیکن کھچڑی میں ڈالنے کے لیے ہمارے گھر میں گھی نہیں ہے، میں جا کر تمہیں گھی لے کر آتا ہوں۔ چڑے نے کہا، تم کھچڑی پکانا شروع کرو۔ یہ کہہ کر چڑا گھی لینے چلا گیا اور چڑیا نے کھچڑی کی دیگچی چولہے پر رکھ دی۔ اس وقت سرخ اور سنہری رنگ کا ایک شاندار رتھ وہاں سے گزرا۔ اس رتھ میں ایک بڑا اور موٹا راجا بیٹھا تھا۔ جب راجا نے چڑیا کو کھانا پکاتے ہوئے دیکھا تو ہنسنے لگا۔ ہا 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 ہا، چڑیا کھانا پکا رہی ہے، ہا 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 ہا۔ راجا کافی دیر تک ہنستا رہا، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور اس کی موٹی دونت گھومنے لگی۔ اے چڑیا، تم کیا پکا رہی ہو؟ راجا نے پوچھا۔ جناب، میں اپنے شوہر کے لیے کھچڑی پکا رہی ہوں، چڑیا نے جواب دیا۔ ہا 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 ہا، ایک چڑیا کھچڑی پکا رہی ہے۔ اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اور حکم دیا، اسے پکڑ لو اور میرے محل میں لے چلو، اور ہنستے ہوئے کہا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چڑیا کھچڑی میرے لیے پکائے۔ راجا کے نوکروں نے چڑیا کو پکڑ لیا، پھر اسے ایک پنجرے میں بند کر کے ساتھ لے گئے۔ جب چڑیا واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ چڑیا گھر میں نہیں ہے اور کھچڑی دیگچی میں جلی ہوئی ہے۔ چڑیا، اے چڑیا، اس نے آوازیں دی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے پھر آواز دی، اے چڑیا، میں گھی لے آیا ہوں، تم کہاں ہو؟ یہ کہہ کر چڑے نے ادھر ادھر چڑیا کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایک چمکیلے زرد رنگ کی سورج مکھی کے پھول نے اسے دیکھا اور بھری ہوئی آواز میں پوچھا، کیا تم اپنی بیوی کی ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے ایک بڑے موٹے راجا کو اسے پکڑ کر لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا؟ چڑے کو صدمہ پہنچا تھا۔ وہ موٹا راجا میری بیوی کو لے گیا ہے؟ اچھا، میں جا کر اسے واپس لاتا ہوں۔ چڑے نے جلدی چیتڑے اور گھاس اکٹھا کیا اور ایک خوبصورت گاڑی تیار کی۔ اتنے میں بھورے رنگ کا ایک چھوٹا سا چوہا چڑے کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، میاں چڑے، اس خوبصورت گاڑی میں تم کیا کر رہے ہو؟ بڑا اور موٹا راجا میری بیوی کو لے گیا ہے، چڑے نے جواب دیا، میں اسے واپس لانا چاہتا ہوں۔ چونکہ راستہ لمبا ہے اس لیے میں نے گاڑی بنا لی ہے، اب اسے کھینچنے کے لیے مجھے کسی کی ضرورت ہے، چڑے نے کہا۔ ہاں میاں چڑے، چوہے نے کہا، بڑے اور موٹے راجا سے چڑیا واپس لانے کے لیے تم اکیلے وہاں نہیں جاؤ گے، یہ میری تیز دانت آخر کس کام آئیں گے؟ کیا میں تمہاری گاڑی کھینچ کر تمہیں تمہاری چڑیا کے پاس نہیں لے جا سکتا؟ اے تیز دانتوں والے دوست، تم بڑی خوشی سے میرے ساتھ چل سکتے ہو، چڑے نے کہا۔ جو ہی چڑا گاڑی میں داخل ہونے لگا تو سورج مکھی پھول نے اسے آواز دی اور کہا، اے چڑے، میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، یہ تمہاری بہت مدد کرے گا۔ یہ ایک زیرہ ہے، یہ بڑی چیزوں کو چھوٹی اور چھوٹی چیزوں کو بڑی کر سکتا ہے۔ چڑے نے سورج مکھی کا شکریہ ادا کیا اور زیرہ لے کر چھوٹی سی سرخی تھیلی میں ڈالا اور تھیلی اپنی گردن سے باندھ لی۔ اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور چوہے نے گاڑی کو کھینچنا شروع کیا۔ گاڑی چور چور کرتے ہوئے چلنے لگی۔ چڑے کو راجا کے محل تک پہنچنے کے لیے ایک گھنے جنگل میں سے گزرنا پڑا۔ ہر جانور چڑے اور گاڑی کو غور سے دیکھنے لگا۔ خرگوش نے اپنی بلوں کے اندر اور باہر بھاگنا بند کر دیا، سانپوں نے رینگنا بند کر دیا، گلہریوں نے پیڑوں کے اوپر نیچے باندھنا بند کر دیا۔ لومڑیاں گاڑی اور اس کے سوار کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں، لیکن چڑے نے کسی کی طرف دھیان نہیں دیا، اس کو صرف اپنی چڑیا ہی کا خیال ستا رہا تھا۔ جب آگے
जब गाड़ी आगे बढ़ी तो एक काली चूंटी ने उसे देखा। वो इसके पास आई और मीठी आवाज में पूछने लगी, ऐ मियाँ चिड़े, तुम अपनी खूबसूरत गाड़ी में बैठकर कहाँ जा रहे हो? चिड़े ने अपनी गाड़ी रोकी और उसे सारी कहानी सुनाई। ये बड़े दुख की बात है, चींटी ने कहा। मैं तुम्हें अकेले ही बड़े और मोटे राजा के पास नहीं जाने दूंगी। ये मेरा तीखा डंक किस काम आएगा? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, बड़ी खुशी से, चिड़े ने कहा। तुम मेरे परों में छुप जाओ। ठीक है, डंक वाली चींटी रेंग कर चिड़े के परों में घुस गई और गाड़ी चुर चुर करते हुए रवाना हुई। जब ये और आगे गई तो एक शेर ने गाड़ी और इसके अंदर बैठे हुए चिड़िया को देखा, तो इसने उसे पुकारा, ऐ मियाँ चिड़े, तुम अपनी घास की गाड़ी में बैठकर कहाँ जा रहे हो? चिड़े ने गाड़ी रोकी और उसे बताया कि किस तरह बड़ा और मोटा राजा इसकी बीवी को उठा कर ले गया है और वो उसे वापस लाने के लिए जा रहा है। ये सुनकर शेर बफर गया। तुम अकेले ही बड़े और मोटे राजा से मिलने नहीं जा रहे हो। मेरे तेज पंजे आखिर किस काम आएंगे? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। चिड़े ने लम्हा भर के लिए सोचा कि वो शेर को किस तरह अपने साथ ले जा सकता है। तब उसे अपनी सुर्ख थैली में रखे हुए जीरे की याद आई। इसने शेर को थोड़ा सा जीरा तोड़ कर दिया। शेर ने उसे चाटा और छोटा होने लगा। वो इतना छोटा हो गया कि चिड़े के परों में छुप जाने के काबिल हो गया। चूहा गाड़ी को तेजी से खींचने लगा और गाड़ी चुर चुर करती हुई चलने लगी। गाड़ी जल्द ही महल के दरवाजे पर पहुंच गई। चिड़ा गाड़ी से उतरा। चूहे ने भी थोड़ा सा जीरा खा लिया और बहुत छोटा बन गया और चिड़े के परों में छुप गया। सुर्ख थैली को अपनी गर्दन से लटके आए हुए और अपने दोस्तों को परों में छुपाए हुए चिड़ा सीधे जाकर तख्त पर बैठे हुए बड़े और मोटे राजा के सामने खड़ा हो गया। चिड़े ने बुलंद आवाज में कहा, मेरी बीवी को वापस करो, उसे फौरन वापस करो, वरना मैं हा हा हा। राजा ने जोरदार कह के लगाया और अपनी पसलियों को पकड़कर हंसते हुए बोला, इस बेवकूफ चिड़े के दिल में क्या है? ये मेरा क्या कर सकता है? हा हा हा। तब राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे यहाँ से ले जाओ और तय खाने की तारीख कोठरी में बंद कर दो। नौकर चिड़े को ले गए और उसे अंधेरी कोठरी के अंदर धकेल कर ताला लगा दिया। ये एक छोटा सा कमरा था। इसका एक बहुत बड़ा दरवाजा था जो इसके मुल्क में पाई जाने वाली सख्त और मजबूत तरीन लकड़ी का बना हुआ था। उस कमरे में सेलन और बदबू थी और इसमें एक ही छोटी सी खिड़की थी। यह खिड़की इतनी छोटी थी कि इसमें से चिड़ा भी सुकड़ कर नहीं निकल सकता था। चिड़ा बहुत उदास हो गया, मगर उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मुझे बड़ा बना दो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये तेज दांतों वाले चूहे की आवाज थी जो चिड़े के पास खड़ा था। इसने चूहे को थोड़ा सा जीरा दिया, जिसे चाट कर वो फिर अपनी असल कामत में आ गया और भागकर दरवाजे के पास गया और अपने दांतों से दरवाजे में एक बड़ा सुराख कर दिया। अपने दोस्तों को परों में छुपाए हुए चिड़ा बाहर गया। जब सुबह हुई तो सिपाही चिड़े को लेने गए, लेकिन चिड़ा कमरे में नहीं था। वो भागते हुए राजा के पास गए और उसे चिड़े के गायब होने की इत्तला दी। राजा ने गुस्से से उछल पड़ा और इसकी आंखों से शरार से निकलने लगे। उसने चीख कर कहा, बेवकूफो, चिड़े को ढूंढो, वरना तुम्हारे सर काट दिए जाएंगे। लेकिन चिड़ा पहले ही दरवाजे पर मौजूद था। वो वहीं से बोला कि किसी के सर काटने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। मेरी बीवी वापस करो, वरना। क्या कहा? राजा चिल्लाया। इसका नाक और इसके कान गुस्से से सुर्ख हो गए थे। सुनो, इस चिड़े को ले जाओ और उसे पागल हाथी के
मेरे सामने डाल दो। चिड़े को फौरन पागल हाथी के सामने ले जाया गया। जब वो वहां खड़ा था तो तेज डंक वाली चींटी चिड़े के परों से निकली और तेजी से रेंगती हुई हाथी के सूंड में दाखिल हो गई। हाथी इतना खौफजदा हुआ कि वो दुम धड़ाम से जमीन पर गिर गया, जिससे सारी जमीन दहल गई। इसके बाद चींटी फिर रेंगती हुई आकर चिड़े के परों में छुप गई। चिड़ा फिर राजा के पास गया और उसे कहा, मेरी बीवी वापस करो वरना। चिड़े को दोबारा देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाया, इसको यहाँ से ले जाओ और अस्तबल में घोड़ों के आगे डाल दो ताकि ये उनके समूह के नीचे कुचल कर मर जाए। सिपाही तेजी से अंदर गए। उन्होंने चिड़े को पकड़ा और अस्तबल में ले जाकर घोड़ों के आगे फेंक दिया। उस वक्त तेज पंचों वाला शेर परों में से निकला। चिड़े ने उसे थोड़ा सा जीरा चिटाया और वो अपनी असर में आ गया। जब घोड़ों ने बड़े शेर को देखा तो वो इतना खौफजदा हुए कि उन्होंने अपने रस्से तुड़वा लिए और अस्तबल से बाहर निकलकर इधर उधर भाग गए। तब चिड़े ने थोड़ा जीरा चींटी और चूहे को दिया, जिससे वो भी बड़े बड़े बन गए। इसके बाद चिड़ा बड़ी गर्ज वाले शेर, बड़े चूहे और बड़ी चींटी को हमरा लेकर इस जगह गया जहां राजा बैठा हुआ था। जब राजा ने उनको आते हुए देखा तो इस कदर डरा के चकरा कर भारी भरकम बंडल की तरह गिर गया। हा हा हा, शेर हंसा, हा हा हा, चूहा हंसा, हा हा हा, चींटी हंसी। चिड़े ने जल्दी से अपने दोस्तों को जीरा खिलाया और वो एक बार फिर छोटे छोटे बन गए और चिड़े के परों में छुप चुके। जब राजा को होश आया तो उसे सिर्फ चिड़ा ही खड़ा हुआ नजर आया। चिड़े ने बुलंद आवाज से कहा, मेरी बीवी वापस कर दो वरना। राजा ने अपने आदमियों को बुलाया और हुक्म देते हुए कहा, चिड़िया को लाओ और उसे चिड़े के हवाले कर दो। वो बेकार चीज है, उसे चिड़िया चिड़े, तुम उसे वापस ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। राजा के आदमी चिड़िया को ले आए। चिड़िया और चिड़ा हाथों में हाथ डाले फातों की तरह राजा के महल से बाहर आए और चीतड़ों और घास की बनी हुई गाड़ी में जा बैठे। गाड़ी चुर चुर करती हुई जंगल में से गुजरी। चिड़िया और चिड़ा आपस में दोबारा मिल जाने पर बहुत खुश थे। रास्ते में चिड़े ने अपनी बीवी को सूरजमुखी फूल, चूहे, चींटी और शेर के बारे में सब कुछ बताया, जिन्होंने उसे बड़े बड़े और मोटे राजा के जंगल से छुड़ाने में इसकी मदद की थी। चिड़े और चिड़िया ने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। जब वो वापस घर पहुंचे तो चिड़िया ने उनके लिए ढेर सी खिचड़ी पकाई और उस लजीज खाने को इनके दोस्त चूहे, चींटी और शेर और आसपास रहने वाले सभी दूसरे परिंदों और जानवरों ने खाया। और फिर सब जिंदगी में मजे से रहने लगे, सब खुश और निहाल रहने लगे। अल्लाह हाफिज।